यही करोगे आप उसको आइडेंटिफाई करके क्रिएट एन एमवीपी, गो टू द कस्टमर फास्टर, लेट द कस्टमर हेल्प यू बिल्ड द प्रोडक्ट। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से। मैं अपनी कंपनी में भी यही कहता हूँ कि लेट द कस्टमर बिल्ड द प्रोडक्ट। रोड मैप तो कस्टमर ही बनाता है, हम थोड़ी बनाते हैं। कस्टमर बताता है मुझे ये चाहिए, इसमें ये भी चाहिए, इसमें ये भी चाहिए। वो हमें जैसे प्रॉब्लम बताता है, वो हमारी प्राइस। DU has got a lot of challenges today. I think I'm not sure if DU students would be able to relate today. But at that time, I'm talking about late 90s, there were almost 85 colleges. Message यही कि Web3 we are in exciting times. It's another era of internet which is starting, Web3. और आप कुछ भी build कर रहे हो तो just keep on building. It's very exciting times. And there are a lot of startups from India, and this is something great, because now we are creating innovations. We are not just a services known for services anymore. We are creating some exciting startups which are competing at the global level. Hello guys and welcome back to the Preetham's podcast powered by JC Crypto and Quill Audits. Today we have Dr. Ravi Chamadia, founder of Zeev. आज हम बात करेंगे इनके स्टार्टअप Zeev के बारे में एंड अभी करंट सिनेरियो जो भी चल रहा है FTX एंड बाइनेंस के साथ, जो आप सब लोगों को पता ही होगा, एंड और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एज फाउंडर्स आप कैसे अपनी पर्सपेक्टिव को बदल सकते हो और अच्छा ले जा सकते हो to grab new opportunities. Or let's start without any further ado. So welcome to the Preetham's podcast, sir. Yeah, hi Preetham. I'm very excited to be here. So first of all, thanks a lot for this opportunity to have an interaction with you, your viewers. Sir, सर तो ऑब्वियसली मैक्सिमम फाउंडर्स के साथ यही क्वेश्चन होता है कि वो Web3 या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोल लें या फिर क्रिप्टो बोल लें, उनके साथ वो कैसे इंट्रोड्यूस हुए? Yeah, so I think it was more of a chance discovery. I was into a fintech startup called Biz2Credit. And during that time, I got upon Bitcoin white paper. It was in 2015. I read about smart contracts, and then I, went a step back. और Bitcoin white paper जब एक बार पढ़ने के बाद में, then I realized this is something very exciting. So I think the technology itself excited, and the second, the philosophy behind the technology. That yes, decentralization or distributed technologies, this is the answer to some of the major problems that we see today in this society. So दोनों चीज़ें, philosophy और technology, दोनों चीज़ें बहुत attractive था. So then I started reading more about it, did some more research, and then finally planned on getting into it. एंड वैसे तो हम Zeev की भी बात करेंगे, पर हम पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका फर्स्ट स्टार्टअप वो कौन सा था? वैसे तो आई नो, बट फिर भी फॉर द व्यूअर्स, एंड व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड स्टार्टिंग अप योर फर्स्ट कंपनी? Yeah, so I was doing my medicine at that time, MBBS, and .com boom was happening. So I, along with some of my friends, we realized that DU has got a lot of challenges today. I think I'm not sure if DU students would be able to relate today. But at that time, I'm talking about late 90s, there were almost 85 colleges under DU. 80 to 85% of the people in DU used to come outside Delhi. और हर कॉलेज के लिए एक अलग एडमिशन फॉर्म भरना होता था और कुछ नहीं पता होता था कि क्या कट ऑफ्स होंगे, किस में एडमिशन मिलेगा. अब कुछ स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस होता है टू टेक अ स्पेसिफिक कोर्स, कुछ स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस होता है टू टेक अ स्पेसिफिक कॉलेज, और ये बहुत डिफिकल्ट था उस समय असेस करना. और ये बहुत कॉमनली होता था कि मेरे को एडमिशन नहीं मिला बिकॉज मैं यहाँ पे हो सकता था बेस्ड ऑन कट ऑफ्स, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया. तो लोग 5-10 कॉलेजेस में अप्लाई करते थे, दे यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस. उसके अलावा DU में ये कुछ पता नहीं था कि मेरे को BCom ऑनर्स लेनी है या इको ऑनर्स लेनी है. इको ऑनर्स में होता क्या है, व्हाट द सिलेबस, कहीं कोई फॉर्मल कुछ भी नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 90s. इट्स अ बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी. So we thought of creating DU Info. So we created a .com called duinfo.com. And it became very, very popular. In fact, people started taking that as a formal, informative center for DU. और हमने उस समय
आई एम टॉकिंग अबाउट 1998, हमने डेटा एनालिटिक्स का एक टूल बनाया था Okay. जिसमें 5 साल का डेटा लेके हमने एक टूल बनाया कि आप अपने 12th की परसेंटेज डालो, अपनी चॉइस ऑफ कॉलेज या चॉइस ऑफ कोर्स डालो, एंड देन बेस्ड ऑन लास्ट 5 years डेटा इट विल टेल यू कि किस किस कॉलेजेस में आप अप्लाई करो. Your probability is going to be more to get the admission. And it became an instant hit. And I'm talking about a time जब 60 रुपए देकर, कोई डेस्कटॉप लैपटॉप्स नहीं होते थे किसी के पास, लोग 60 रुपए देख के इंटरनेट कैफे जाते थे per hour. They used to serve the internet. At that time we used to have 2 million hits a month. So it was that popular. So it was the start of my journey into IT or internet, you can say. Okay, what was the inspiration? इंस्पिरेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग ही था. हमेशा स्टार्टअप की इंस्पिरेशन तो हमेशा प्रॉब्लम्स ही होती है. यू सी अ प्रॉब्लम एंड देन यू हैव अ इच टू सॉल्व इट. यू नो दैट्स हाउ ऑल द स्टार्टअप्स If I'm not wrong, what was the name of the website? It's duinfo.com. I exited in 2000, but very interesting journey. We had some good partners, good sponsorships. But उसके बाद फिर .com bubble burst हुआ. Then you know fundings were very difficult to had. And जैसे मैंने बताया कि उस समय इंटरनेट पेनिट्रेशन उतना था नहीं. So during the admission time, when we are actually solving a big challenge for the students, there was lots and lots of excitement. But throughout the year, उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है फिर आपको, you know, to keep them excited, to keep them coming on site, how to generate more value. उस समय बहुत अच्छे business models भी. I'm talking about very early days of .com. जब business models बन ही रहे थे. So once .com bubble bursted in 2000, post that, you know, things started dragging down. Then I shifted to startup consulting. And then for many years I did startup consulting, worked with quite a few US based startups, ideation से लेकर implementation तक, you know. okay. Now cut to after multiple startups. Here we are with Zeev, right? Right. So let's talk about Zeev. So Zeev is a very interesting startup. Again, हमने जब blockchain में I started a company called Suffocal, और Suffocal में we were building products and solutions for enterprises in supply chain, financial services. और उस समय काम करते करते we realized that, you know, Web3 infrastructure, managing a blockchain infrastructure is entirely different than Web2 infrastructure because it distributed technologies, आपका data multiple nodes पे होगा. तो और इसको manage करने के लिए tools नहीं है proper, कोई automation नहीं है. And that's where we started Zeev, to create a no-code automation platform जिसके थ्रू आप blockchain का infrastructure manage कर सकते हो. तो जैसे आप suppose you are creating a decentralized app, और decentralized app को आपको connect करना है to blockchain, so you require an API. Either you use a shared API or let's say you create a dedicated node of your own. और वो node से आप अपने सारे interactions करोगे और वो node in turn blockchain network से interactions करेगा, right? So that's how the whole blockchain works, right? Where the communication move from one node to another and so on and so forth. So जब आपकी DApp को run करने के लिए you require a node in the vicinity. तो फिर हमने ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे आप just one click आप कोई भी node deploy कर सकते हो. And we support 20+ blockchain protocols including Ethereum, Polygon, you know, and some of the new ones like Shardium, etc. और इसके अलावा we support all the major cloud providers like AWS, Azure, Google Cloud, DO, Linode, and then we are adding more clouds to the fold. Plus we after deployment, so deployment एक part हो गया major, where you know we provide automation, we provide security, reliable infrastructure, but then there is a continuous analytics and monitoring because आपने एक बार infrastructure बना लिया जैसे you know AWS में आपने cloud based app deploy कर ली तो आपको चाहिए continuous monitoring हो, scalability हो, reliability हो. So we have a very sophisticated security layer. क्योंकि एक चीज़ हम रियलाइज करते हैं स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स. सो इंटरप्राइज हमारे दो टाइप के कस्टमर्स हैं. सो वन डेवलपर्स एंड स्टार्टअप्स एंड सेकंड इंटरप्राइजेस. सो इंटरप्राइज की एक्सपेक्टेशन वही है जो Web2 में एक्सपेक्टेशन थी उनकी कि हमें इंटरप्राइज ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सॉलिड स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अप टाइम एंड सिक्योरिटी. तो वो हम इंश्योर करते हैं. एंड एट द सेम टाइम अगर आप स्टार्टअप्स को देखो या डेवलपर्स को देखो, ऑब्वियसली दे कैन नॉट हायर अ CISO टू मैनेज देयर सिक्योरिटी. So we are providing that additional layer of security. तो उनको कुछ नहीं करना. Our platform will do everything. They will do the server hardening, following all the OWASP guidelines to, you know, manage the security on the platform. So we ensure the complete reliable infrastructure. So आपको मतलब $50 के अंदर you are getting a enterprise grade infrastructure. So that's one. Second, APIs में in fact we have launched a free API plan, free forever, जिसमें 10 million API units हम दे रहे हैं per month.
So any developers till the time they get into production and have got a heavy usage, they can actually use a free plan. So it will not cost them anything. So and that is just because we want more and more people to start adopting Web3 and get onto the Web3 wagon and start building on it. So initial build up stage के अंदर every developer wants these some of the essential tools like Zeev to be free so that they can build the app. तो जितने भी स्टार्टअप फाउंडर है वो सुन सकते हैं यहाँ पे कि कैसे वो हाउ दे कैन लेवरेज Zeev सर्विसेज एंड अगर हम अभी अभी जो चल रहा है सिनेरियो, तो अभी कुछ दिन पहले मैं एक ट्रेडर से मिला रैंडमली कॉलेज के बाहर, वो भी एक कॉलेज स्टूडेंट है, तो ही वाज सेइंग कि अब Web3 का कुछ नहीं हो सकता, डाउन हो गया सब कुछ। मैंने बोला ब्रो यू आर थिंकिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेडर, और फाउंडर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के पर्सपेक्टिव से या फिर टेक की जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट जस्ट स्टार्टिंग आउट। No, absolutely. See, FTX kind of scenario like Celsius happened, then FTX happened. ये सब चलता रहेगा, because अभी क्या है, proper formal regulations नहीं है, और most of the people who are running some very good startups in this space, उन्होंने self regulations implement किए हैं, तो अभी चीज़ें काफ़ी haywire है, जिसके कारण से the way I see it, processes are not very standardized or formalized. तो ये तो खैर because the industry is growing, it's at early stages. But as far as tech is concerned, that's highly validated. तो उसमें कोई इशू नहीं है, ये सब इंसिडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2008 क्राइसिस से ऐसा नहीं कि लोगों ने बिजनेस करना बंद कर दिया, राइट? और we did not see Apple grow or Amazon grow or any other organization grow, right? So Ethereum is growing because yesterday I was reading कि Ethereum ने yesterday or day before yesterday was the first day when Ethereum was actually deflationary. तो Ethereum ने EIP 1599 लॉन्च की थी, 1559 और 1599 लास्ट ईयर, जिसमें they started burning all the transaction fee, और अब finally ये situation आ गई है कि when Ethereum has become deflationary. So there are lots and lots of exciting startups, lot of innovations which are happening in this space that will continue to happen, and I see a lot of investment still happening here. FTX जैसे setbacks आते हैं, they will have definitely it's having a huge impact on the industry as such, क्योंकि इससे investor confidence हिलता है, और नए जो घुस रहे होते हैं किसी एक इंडस्ट्री में, they also feel a bit bad about it, but ठीक है, I think it's part of the game. अभी हम जो लोग सोच रहे हैं कि FTX का क्या है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, समझाएंगे क्या हुआ था, पर उससे पहले मैं जानना चाहूँगा सर कि आपने 2008 का भी क्रैश बहुत अच्छे से देखा होगा, राइट? एंड 2000 में जो .com बबल क्रैश हुआ वो भी आपने अच्छे से देखा होगा, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन एट दैट टाइम? जो एक फेमस कटआउट है, वो इंटरनेट पे बहुत फेमस है, आई थिंक .com वाज फैड करके है, वो कटआउट अभी भी फेमस है। जब वो .com बबल क्रैश हुआ था तो अभी भी वो कटआउट दिखाते हैं कि ऐसा हुआ था। हाँ, तो आई वुड नॉट से .com वाज फैड, टेक्नोलॉजी इज नॉट फैड। जब नई टेक्नोलॉजी आती है, एक्साइटमेंट आता है, एक्सुबरेंस आता है, तो फोमो आता है साथ में। होता क्या, जैसे .com आया तो हर टेक्नोलॉजी की अपनी स्टेजेस हैं। जब नई टेक्नोलॉजी आती है, अर्ली स्टेजेस होते हैं। अर्ली स्टेजेस में क्या होता है कि यू थिंक अबाउट समथिंग इनोवेटिव, हाउ दिस टेक्नोलॉजी और व्हाट वेज दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड, राइट? और उसके बेसिस पे देन यू क्रिएट मॉडल्स, you create a product or a platform or something similar, and then you try to validate that, you test it out how it goes. तो उससे बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश होती है, जैसे हम कहते हैं वैलिडेशन हो गया कि आइडियाज वैलिडेट हो गए और टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश हो गई। अब .com में भी उसी फैड से ही हमारे पास we got Naukri.com, we got Shaadi.com, we got some very exciting ventures who are still existing, who have grown leaps and bounds in last 20 years. तो ऐसा नहीं है, और उसी .com से finally what the way internet we see today, all the mobility, social media, everything has come out of that. But ये होता है कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो शुरू में इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, people start building on it, and then rest of the people who have not invested into the initial early stages, they feel left out. तो फिर वो FOMO create होता है, फिर बहुत सारा पैसा आता है, फिर बहुत सारे startups build करने लग जाते हैं, lot of Me Too's also start happening, और उसमें क्या होता है कि एक टाइम आता है जब चीज़ें overbought हो जाती हैं, right? That happens in the stock market also, right? Stock market में ups and downs आते हैं because sometimes the stock becomes oversold, sometimes they become overbought. जब overbought होते हैं तो एक बार crash आता ही है। तो .com में भी यही था, वैल्यूएशन जब
एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक्स जिसे हम कहते हैं, जब वो हो जाते हैं तो एक बार क्रैश आता ही आता है। 2008 was more of a greed in the financial sector, due to which 2008 crisis happened, where again वही था कि सब FOMO feel करते हैं, and then people start investing recklessly, and 2008 was again our over reliance on mortgages, that mortgages cannot fail, and some of this that एक movie है The Big Short, if The you Big Short and the Marginal Call. yeah. So I think जिसको रिसेशन या फिर जो अभी मार्केट में हो रहा है वो जाके देख सकते हैं, मार्जिनल कॉल एंड द बिग शॉट. दीज टू मूवीज विल एक्सप्लेन इजीली कि अभी सिनेरियो क्या चल रहा है, 2008 में क्या हुआ था, और जब भी रिसेशन या फिर मार्केट डाउन होता है तो क्या सिनेरियो होता है. एंड अगर हम अभी अभी की करंट सिनेरियो जो एफटीएक्स के साथ हुआ सर, वो एक बार एक्सप्लेन करोगे सर आप व्यूअर्स को, कि क्लैरिटी मिल जाए लोगों को क्या वो एग्जैक्टली. देखो, इन शॉर्ट तो यही था कि जैसे यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अ टर्म कॉल्ड बैंक रन. तो बैंक रन एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर वी लूज कॉन्फिडेंस ऑन अ बैंक एंड पीपल स्टार्ट ओवर ड्रॉइंग. तो होता क्या, देखो बैंकिंग सिस्टम में क्या है, सिंपल, एक तरफ डिपॉजिट्स है, where people deposit their funds with the bank, and then bank take that funds and further invest that into value generating assets, like वो loans में invest करते हैं. So that's how bank also make money, and that's how your deposits also make money. अगर आपके savings deposit पे 3% 4% आपको interest मिल रहा है, तो वो interest उसी से मिल रहा है because bank is using that money to make further money. है ना? अगर suddenly बैंक के पास ऐसा नहीं है कि आपने जितना पैसा डिपॉजिट किया बैंक के पास पड़ा हुआ है, कि आप किसी दिन आपने बोला, सबने एक साथ बोला कि हमें आज ही विड्रॉ करना है तो बैंक दे पाएगा, ऐसा नहीं होता ना. हाँ. तो this whole operation is running based on confidence or trust on the bank. Bank run is a situation when you lose that trust and everybody start feeling कि यार मेरा पैसा डूब जाएगा, and they start withdrawing all money, and then sudden इतना withdrawal होगा तो बैंक उसको fulfill नहीं कर सकता. The same thing happens with the FTX also, because there were a news which was published in CoinDesk, based on which जो Alameda Research है, which is the partner company of FTX, they were over leveraged. They had lot of loans. I think almost like $8-9 billion worth of loans that were given. और उसके पीछे जो collateral था, that collateral was FTT tokens. An FTT token is a token of FTX, and FTX has got every possibility to generate more tokens. So then people lost trust on the collateral itself, and then when they lost trust, they said that ये तो risky हो सकता है, and then we made something like Terra Luna or something like that. So people got scared and people started withdrawing funds. और एक बार जब आप withdraw करना शुरू कर देते हो, तब even if situation salvageable होती भी है तो नहीं हो पाती फिर. And then price started dropping down, and जब फिर वो vicious cycle बन जाती है, फिर आप और draw करते हो, and then it became a effect, and eventually billions of dollars were lost in a day. एंड उसके बाद आई थिंक या उससे पहले आई डोंट नो, इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ट्विटर के थ्रू ही सबको लोगों को पता लगता है कि उनके कुछ बहुत सारे, आई थिंक कुछ हजार करोड़ की इनलिक्विड एसेट्स आ गए थे एफटीएक्स के पास. आई थिंक उससे भी बहुत ड्रॉबैक मिला उनको. तो ये भी pretty much FTT tokens का जो collateral, ये भी illiquid ही हुआ ना, क्योंकि इसकी क्या liquidity है. तो ये कंसर्न वही है, सिमिलर कंसर्न ही है, illiquidity ही है. सर तो ये एफटीएक्स जो ये इन्होंने फिर लिमिटेड सप्लाई क्यों नहीं रखी, क्योंकि लिमिटेड बेसिक इकोनॉमी से कि कुछ चीज लिमिटेड होगी तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ेगी. तो वही बात है ना, सी that's what I'm saying, lack of formal standards in the market, that is what is required. वो भी नहीं है, they are missing, and we are seeing the such scenarios happening. But ठीक है, I think market is learning out of it, people are learning out of it, and they will be so things have changed drastically. आज अगर हम 2017 ICO टाइम को देखें, where more than 90% of the ICOs failed after raising funds, to 2022, I think things have changed dramatically. Now there is much more due diligence, investors are investing wisely, and we are seeing good number of startups. In fact, India में इतने exciting Web3 startups आ रहे हैं, well funded, and there's a lot of excitement. They are competing at the global scale. तो ऐसी है, I think with these kind of scenarios, market improves. Market take all these failures, all the errors, mistakes that they have done, and then market improve. So I would say that it's having a major impact, but it will pass. और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एफटीएक्स के एफटीटी जो टोकन है उनके जो मैक्सिमम होल्डर है
वो टॉप 50 लोग ही हैं, तो ये भी एक मेजर ड्रॉबैक है। कॉन्सेंट्रेशन, यस, नो डाउट, और ये कॉन्सेंट्रेशन की बात हर जगह हो रही है, वेदर देयर इज अ ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल जहाँ पर केवल 20-25 वैलिडेटर्स हैं who are validating the chain, there's a security risk, so centralization risk. See, end of the day blockchain brings decentralization. तो अगर आपके आर्किटेक्चर में, आपके बिजनेस मॉडल में अगर वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, तो देन ऑफ कोर्स दैट रिस्क विल कम. यस, आई अंडरस्टैंड दैट 100% डिसेंट्रलाइजेशन कैन नॉट बी अचीव्ड टुडे, but at least that journey should be there. It should be highly decentralized to start with, and then there should be a clear target that we are going to reach to a level where we will have 100% decentralization. जैसे हम DeFi में भी देख रहे हैं, it's pretty good. You know, they have got a smart contract based lending protocol or exchange protocol, and then the organization which is managing these dApps, उन्होंने भी अपने गवर्नेंस टोकन लॉन्च किए हैं, so that वोटिंग बेस्ड मैकेनिज्म्स हैं, किस टाइप की चेंजेस करें, क्या अपडेट्स करें. So I think a lot of governance mechanisms are coming in, which is good. तो I think यही चीज़ की ज़रूरत है कि हम decentralization को seriously लें. तो सर डोंट यू थिंक कि एक फुल ऑब्वियसली आपने बोला भी कि डिसेंट्रलाइज फुल फ्लेज्ड नहीं हो सकता, बट आई थिंक हाइब्रिड तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा. नहीं, हाइब्रिड तो है ही अभी ऑलरेडी. हाँ. अगर जितनी भी आप अच्छी डैप्स देखो, आप DeFi में देखो, लेंडिंग साइड पे, डेक्स साइड पे, quite a few of them they have governance and sound governance, lot of transparency, सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में है. तो ऐसा नहीं है, तभी तो देखो पैसा सेफ है. जो भी आज के टाइम में डेक्सेस पे वो एटलीस्ट आपके फंड सेफ है, नॉन कस्टोडियल है, वो सारा पैसा आपके अपने वॉलेट में है, तो आपका पैसा रिस्क पे नहीं है कहीं पे भी. वहाँ रिस्क केवल टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, राइट, विच इज इम्प्रूविंग एनीवेज. तो सिक्योरिटी हैक्स होते हैं, वो एक इशू है. जैसे ब्लॉकचेन ब्रिजेस में हमने देखा है, there were quite a few hacks that happened in last 1 year, 1.5 years, using the blockchain bridges. And तो ठीक है, टेरा में जैसा हुआ एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन में, बट ये तो टेक्नोलॉजी साइड पे है, दैट कैन बी रेक्टिफाइड, राइट. जहाँ अब्यूज ऑफ अ बिजनेस मॉडल आता है, वो चीज़ है जहाँ हमें क्लियर रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है. एंड मैंने जैसे प्रीतम सर हो गए अपने क्यूलर्ट्स के फाउंडर, एंड बाकी और भी अदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग फर्म्स के फाउंडर से बात की है, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि वेब3 में यही एक नई चीज़ है कि यहाँ पे मनी भी या फाइनेंस भी इंक्लूड हो जाता है. करेक्ट. वेब2 में सिर्फ था कि आप कोई सिर्फ टेक्नोलॉजी को कोई हैम्पर कर पा रहा था, पर यहाँ पे लोगों का पैसा भी जुड़ा हुआ है, तो ये चीज़ भी नहीं है. नो एब्सोल्युटली. और इसीलिए अब देखो, आप चेंजेस देखो, लास्ट 6-7 महीने में हम देख रहे हैं जितने भी डेक्सेस वगैरह आ रहे हैं, अब वो लिखते हैं कि नाउ दे आर गेटिंग देयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑडिटेड बाय 2 कंपनीज और 3 कंपनीज. इनफैक्ट मैंने देखा कुछ नए वेंचर्स में 3 ऑडिट रिपोर्ट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट सर्टिक से, क्वांटस्टैम्प से, क्विल ऑडिट से, डिफरेंट है. तो लोग अपना रिस्क वैसे भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि ठीक है, अगर सपोज, क्योंकि ऑडिट्स तो ये पहले भी हुए हैं, बट स्टिल कोई भी ऑडिट कंपनी करेगी, देयर स्टिल आर चांसेस कि कोई ना कोई लूप होल रह जाए, राइट, कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी रह जाए जिसको एक्सप्लॉइट कर सको आप. But now getting it audited by 2 companies or 3 companies, you are further diversifying your risk. तो ये सब clear है, because people understand it's bad for business also. And sir, ये जैसे Binance ने FTX के साथ strategic partnership की थी 2019 में, तो how you feel कि ये चीज़ FTX की तरफ से सही, ये मूव सही था from a entrepreneur's point of view, मैं पूछूँ तो कि ये मूव सही थी या गलत थी? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आप अपने कंपटीशन से मतलब अर्ली स्टेज में ऐसे मर्ज नहीं हो सकते, बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि गलत है. देखो, ये बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस, क्योंकि आज के टाइम में स्पेशली इन Web3 व्हाट वी आर सीइंग इज कि पार्टनरशिप इज द वे टू ग्रो. तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरीबडी, इवन इफ ऑपरेटिंग इन द सेम एरिया, दे ब्रिंग इन सम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज और इनोवेशन. तो पार्टनर्शिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आई डोंट नो द एक्चुअल टेनेट्स ऑफ व्हाट द पार्टनरशिप वाज अबाउट, किस लेवल पे वो बात कर रहे थे. जैसे आज हम देखते हैं इवन एक्सचेंजेस में आपस में लिक्विडिटी शेयरिंग होती है, विच इज गुड फॉर बिजनेस, राइट, बिकॉज कई बार आपके पास लिक्विडिटी कम है, कई बार किसी के पास ज़्यादा है. तो पार्टनरशिप इज नॉट बैड, पार्टनरशिप इज इनफैक्ट गुड, and we have seen this. We have partnered with quite a few players who are operating in the infra space. These are strategic partnerships, sometimes vertical integration. Let's say with smart contract audit companies, right? So जो smart contract audit companies are, they are vertically integrated with us. We did a partnership way back 2 years back with a Israel-based company called Valid.network. वो 100% automated smart contract platform है उनका.
तो हम टाइप करते हैं, खुद टाइप करते हैं इस टाइप की कंपनी से, बिकॉज सो आइडिया इज दैट वी वांट टू सर्व आवर यूजर्स, हमारे यूजर्स को, डेवलपर्स को एक जगह पे सारी चीज़ें मिल गई कि अच्छा ठीक है, मैं ऑडिट भी यहाँ से कर सकता हूँ, ये भी यहाँ से कर सकता हूँ, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा प्रपोजिशन है। तो हम कस्टमर फोकस्ड हैं, कस्टमर ओरिएंटेड, कि कस्टमर को, डेवलपर को जो चाहिए वो मिल जाए उसको, और जितना हम उसको हेल्प कर सकें इन द कंप्लीट डेव लाइफ साइकिल। हम प्रोवाइड केवल इंफ्रा कर रहे हैं, बट सपोर्ट हम चाहते हैं कि उनको हम पूरा कर सकें, you know, starting from identifying which protocol to build on, to, you know, how to build it, how to deploy it, how to manage. So we are managing just one part of it, but we have hundreds of partners today already who are building different kind of tools in the Web3 infra space. तो आइडिया ये कि उनको लेके आए ताकि उनको एक आइडिया लगे, और डेवलपर्स are happier that way. तो पार्टनरशिप आई थिंक कभी भी it depends also on the partnership deed, उसमें क्या Correct. क्या है चीजें। क्या टेनेट्स थे और उसके बाद क्या हुआ, वो तो देखो, इट्स नॉट इन द पब्लिक डोमेन, सो वेरी डिफिकल्ट टू Yeah, correct. आंसर दैट, बट अदरवाइज जनरली स्पीकिंग partnerships are always good, and that's how the Web3 ecosystem is growing. Everybody is partnering with Correct. others on a strategic side or technology side and growing together. And how do you see कि Binance अपने competition को ही acquire कर रहा है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई है। हाँ, लेकिन वो तो फिर डील ड्रॉप हो गई थी. Binance was trying to acquire it, but then they dropped the deal. Now I think I read yesterday that Justin Sun, the Tron guy, he's still putting in some money to salvage the situation. But then yesterday there was another bad news that 400 million which were there in the cold wallet also got hacked with FTX. So I think unfortunately in this incident, काफी retail investors will again lose a lot of money like they did in Celsius and few other Terra and so on and so forth. I think FTX में I think कुछ जो popular sharks हैं वहाँ के, जो बोलते हैं US में, उन्होंने भी I think invest किया था। काफी थे. SoftBank ने भी कहा कि 100 million at least थे. वो तो खैर है ही naturally because सब invest करते ही हैं. And then Alameda was heavily invested into Solana. That's why Solana also crashed massively, more than 50% in last 3 days. ये एक FTX की वजह से बहुत सारे network effect पड़ चुका है। It was one of the largest crypto exchange, so of course, people are comparing it with Lehman and Brothers. That the failure of Lehman started the whole 2008 crisis. If you don't know, so FTX is this crisis is being compared to that. It's obviously a very very bad news for the industry. Okay. But I think Web3 has become quite resilient. तो ऐसा नहीं है कि इससे कुछ बहुत ज़्यादा impact आएगा future side पे. Things will. I think जो बस जो trader है ना, वो थोड़ा सा वो उनके mind में. वो तो देखो, जिन्होंने पैसा lose किया है, obviously it's a major setback to all the investors who were invested and who held their money there. ये लोग समझते हैं कि exchange पे पैसा पड़ा है तो safe होगा. At least especially with like Binance or Coinbase or FTX, ये सब बड़े exchanges हैं. OKX, these are large exchanges. Obviously, people trust them. कि they will not face liquidity problems. They will not stop withdrawals anytime, right? तो face करते हैं. इसलिए मुझे लगता है आज भी non-custodial wallets are better option. But for a larger adoption, of course, users आज भी इतने comfortable नहीं हैं to manage their private keys, so they resort to these exchanges to keep their funds. और इसके अलावा liquid तो आप वहीं पे रखते ही हो कि trading करने के लिए तो लोग रखते ही हैं वहाँ पर. तो yeah, so a lot of retail investors also lost huge amount of funds. और जो ट्रेडर सोच रहे हैं कि मतलब जैसे मैं रिसर्च ट्रेडर से ही मिला था, ऑब्वियसली वो यंग ही था मेरी तरह, तो बोला था यार नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा, तो उनको आप क्या बोलोगे जो यंग ट्रेडर है जो कल टेक्नोलॉजी साइड से we are very bullish, we continue to be bullish. FTX जैसे scenarios are blips, but yes, we are not worried about that because we see on the traction side enterprises adopting blockchain, different new business models coming in Web3. That's continue to happen. And sir, जो ये मार्केट क्रैश देख करके जो यंग स्टेज फाउंडर होगा उसके लिए क्या मैसेज है, जो थोड़ा नेगेटिव हो चुका है कि देख के ऐसा लगता है कि इसमें मुझे नहीं, as I said, market is still going at a very rapid growth pace. So keep building. If you are planning to build something in Web3, whether it be DeFi, whether it be NFT has also now grown big. It started with digital collectibles, but now we are talking about non-transferable tokens, soul-based tokens. We are talking about various models, real-world asset tokenization, and
So it's a huge industry, and it's growing massively. So my message is, if that you're a Web3 founder, want to build something in Web3, go for it. Partner with Zeef. Zeef will help you, हाँ, at whichever stage you are. द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो, वेबसाइट को आप विजिट कर लो। जो भी सर की भी लिंक्डइन जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और सर आपको ऐसा नहीं लगता कि यही नेटवर्क इफेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट मेटा पे पड़ रहा है, जैसे उनको भी थोड़ी लॉस झेलनी पड़ रही है और मार्केट स्टॉक मार्केट में उनके प्राइसेस भी कम हो रहे हैं काफ़ी? हाँ, वो ये है कि बिकॉज अभी राइट नाउ दिस इज इन्वेस्टमेंट स्टेज। सी व्हाट मेटा इज डूइंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मेटा इज बिल्डिंग द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मेटावर्स। दे आर बिल्डिंग द एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स। इट्स लाइक जैसे टेलीकॉम में हुआ कि आपने ऑप्टिक फाइबर लेआउट किया, तो while till the time you're laying it out, of course you are investing into it, you're not expecting anything in return in the first year or second year, तो वो तो ठीक है। तो मेटा के साथ अभी ये है, हाँ स्टॉक प्राइस वगैरह तो इम्पैक्टफुल होती है बिकॉज पीपल इन्वेस्टर्स ऑलवेज वांट क्विक रिजल्ट्स, बट द वे आई सी इट, द वे what I read, that Meta is still building the very solid infra for metaverse, and that infra is not only for Meta, that infra can be used by other metaverse startups or Baki, I don't know what they are doing with funds. Funds are, of course, it's billions of dollars they have already invested into Meta. So I'm not privy to what kind of other kind of information, but it's too early. I think for metaverse to happen, it's too early. It will take some time before that whatever kind of experiences we are talking about कि metaverse में ऐसा experience होगा, so that जैसे हम अभी रियल यहाँ बैठे हैं, एक रियल स्टूडियो में बैठे हैं, if this kind of experience can be we can get using a virtual means, then we are talking about real metaverse. So it's going to take time. I think they were planning from 2015 itself. अभी उन्होंने 2019 2020 में मेटा इन्होंने कर दिया, वरना they were planning I think 2015 से वो प्लान कर रहे थे। हाँ, तो हर टेक्नोलॉजी को बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए होते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी सोलो में नहीं ग्रो कर सकती ना, उसके जो भी नेसेसरी जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम, तो हर टेक्नोलॉजी का अपना एक इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम कंपोनेंट्स नहीं होंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। राइट, आज अगर हम आईफोन को भी देखते हैं, जब उन्होंने कहा स्मार्टफोन्स आ गए, स्मार्टफोन्स में टच स्क्रीन्स आ गई, तो टच स्क्रीन अपने आप में एक अलग टेक्नोलॉजी विच एप्पल डिडंट बिल्ड, राइट। टच स्क्रीन तो अलग टेक्नोलॉजी बनी ना, तो अगर वो नहीं होती तो स्मार्टफोन्स आज जिस टाइप का एक्सपीरियंस हम देखते हैं वो नहीं हो सकता। सिमिलरली मेटावर्स में भी देयर आर लॉट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट आर स्टिल बीइंग बिल्ट। वो सारे बनेंगे, देन वी विल रियलाइज द एक्चुअल इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, द टर्म यूज करते हैं, वो टर्म तभी रियलाइज होगा। और इसके लिए तो मतलब पूरा ऑब्वियसली स्ट्रक्चर चाहिए होगा, इकोसिस्टम चाहिए होगा। ऑक्यूलस वगैरह जो भी आ रहे हैं, हमारे वीआर सेट्स आ गए, और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों ने बोला भी है कि सब सोचते हैं हमेशा हमें वो वीआर सेट्स पहनने पड़ेंगे, पर आई थिंक इट विल बी लाइक कि आप फोन में भी आप गेम की तरह यूज कर सकते हो मेटावर्स को। या दैट इज व्हाट इवोल्यूशन इज ऑल अबाउट। धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज और बेटर होगी और यूजर फ्रेंडली होगी, राइट। द इनिशियल स्मार्टफोन्स वर वेरी बल्की, बट धीरे धीरे ऐसे ही होता है। जब इनिशियल फ़ोन, मैंने पहला फ़ोन अपना लिया था 97 में, पैनासोनिक का एक बड़ा सा हैंडसेट था, इट यूज्ड टू वे लाइक ऑलमोस्ट आई डोंट नो 300 ग्राम, लाइक द क्यूबिडल बॉक्स। हाँ, तो 350 ग्राम्स का वो होता था, एंड द कॉल्स यूज्ड टू चार्ज 32 रुपीस पर मिनट कॉस्ट लगती थी उस समय। इनकमिंग वो 16 रुपीस पर मिनट, तो ऐसे ही है। बट नाउ you don't even know that incoming has charges, right? तो ऐसी चीजें चेंज और होती सर हैं मैंने जैसे देखा टेक्नोलॉजी कि मैच्योर होती है। इंस्टाग्राम में भी आपका वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। हाँ, राइट। ये चीज मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि Insta has done a partnership with Polygon, where now different kind of assets, digital assets on your Insta can be quickly converted into NFT, and then you can sell those NFTs. वो तो definitely NFT की classic piece है। That again is a big news for both Insta as well as Polygon. और क्या नाम है, जैसे इन्होंने अपना अवतार डालने का ऑप्शन अपडेट किया, तो आई वाज लाइक कि अरे ये ट्रांजिशन कर रहे हैं पर बहुत धीरे धीरे कि कंज्यूमर को पता भी ना चले कि वो कब मेटावर्स। हाँ, तो ऐसा ऑप्शन ऐड हो जाएगा। जैसे हैकरनून में अगर आपने देखा होगा, तो हैकरनून पे इफ यू गो टू योर प्रोफाइल, इट गिव्स यू ऑल द ऑप्शंस। आप अपनी फोटो अपलोड कर सकते हो, या आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके आप अपना NFT यूज कर सकते हो एज एवटार। तो हैकरनून, तो दैट काइंड ऑफ ऑप्शंस आर नाउ बीइंग गिवन। सो लॉट ऑफ दीज कनेक्ट्स, इंटरफेसेस हैव बीन बिल्ट, जो Web 2 to Web 3 का जो ट्रांजिशन है ना, उसको इनेबल कर रहे हैं। एंड पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग देयर NFT avatars as avatars or profile pics
हाँ, और सर मैंने देखा है कि जो वेब टू गेम्स हैं कुछ-कुछ, अगर मैं स्पेशली बीजीएमआई जिसको पबजी भी बोल सकते हैं हम, वो भी एक ऐसा फीचर डाल रहे हैं कि मेटावर्स काइंड ऑफ अ फीचर है, बस उन्होंने ब्लॉकचेन अभी डिप्लॉय नहीं किया कुछ भी टेक पॉइंट ऑफ व्यू से, पर कंज्यूमर के हैबिट पॉइंट ऑफ व्यू से वो उन्होंने कुछ शेयर पार्क करके कोई फीचर है उसमें, आप जाइए वहाँ पे आप अपने को गेमर्स के साथ जो भी गेमिंग बडी है उनके साथ आप बस चिल कर सकते हैं, खेलना नहीं बस चिल कर सकते हैं। ओके, तो मेरा एक लाउंज टाइप हो गया। हाँ, तो मेरा एक दोस्त है, उसने ऐसा मुझे फीचर बताया था, मैं समझ गया कि पक्का ये लोग भी इसी में ट्रांजिशन कर रहे हैं। राइट, एंड ऑब्वियसली रोब्लॉक्स में भी कुछ ऐसे गेम्स हैं जो ऐसा फीचर है और बहुत दिनों से उनमें, और रोब्लॉक्स मुझे लग रहा है कि बिकॉज ऑफ रोब्लॉक्स का फीचर जो यंग जनरेशन हमसे भी छोटी जो 9-10 साल के बच्चे हैं, वो उनको एज कंज्यूमर देखा जाए तो वो मेटावर्स में जल्दी ट्रांजिशन कर लेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी मतलब मैं जो गेमर्स होता है उनसे बहुत बातें करता हूँ, तो मैंने 9-10 साल के बच्चों से बहुत बात किया है, तो उन्हें वो फीचर बहुत अच्छा लगता है। और मैंने पूछा क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे कंज्यूमर के बारे में जानना है और कि क्या करने Right. वाले क्या नहीं करने वाला वो। उसने बोला अच्छा लगता है, इजी टू यूज है, ऐसा बोला उसने। राइट। तो आई थिंक इजी टू यूज, और दूसरा फिर कनेक्शंस है ना, कनेक्शंस है हाँ। और कॉन्वर्सेशंस हैं, वो सबको चाहिए ही चाहिए आज के टाइम पे। हाँ गेमिंग में भी अगर आप देखो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा गेम्स वही चलते हैं जहाँ पर पीपल मल्टीप्लेयर के जितने गेम्स होते हैं, लोग कोलैबोरेट करते हैं आपस में, टीम्स कोलैबोरेट करती हैं, देन दे प्ले, बिकॉज उस कोलैबोरेशन के टाइम में दे आर नॉट जस्ट कोलैबोरेटिंग ऑन द गेम, यू नो, दे आर स्पेंडिंग सम टाइम टुगेदर आल्सो। तो वही चीज़ है वो। बट आई थिंक Social- गेमिंग में थोड़ा सा मेन स्ट्रीम होने में बहुत टाइम है थोड़ा, या करेक्ट। और मतलब लोग अभी से ही बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे वेब3 गेम्स हैं, जैसे बॉर्न टू डाई है एक, एंड बहुत सारे गेम आ चुके हैं, bolt.ai हो गया, आप जानते होंगे राहुल सर को, राइट। और भी बहुत सारे गेम्स हैं। क्योंकि जो मैं बिल्ड कर रहा था उसमें गेमिंग कंपनीज की गेमर कम्युनिटी की बहुत नीड थी, तो मैं इनमें रिसर्च कर रहा था, तो इंडिया में बहुत सारे वेब3 गेमिंग कंपनीज जो कंटिन्यूस ऑपरेशन में है। राइट, यप। खैर नॉनदलेस गेम्स का जो एक्सपीरियंस है वो तो धीरे धीरे इवोल्व हो ही रहा है Web3 में, इट्स गोइंग टू टेक टाइम, लेकिन जो वैल्यू प्रॉप है, जो ब्लॉकचेन का स्पेशल वैल्यू प्रॉप है गेम्स के अंदर, वो बहुत क्लियर है। इन गेम एसेट्स हैं, उन एसेट्स की फर्दर ट्रेडिंग है, देन आइडेंटिटी है, डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, एंड यू नो सम ऑफ दीज Web3 गेमिंग गेम्स आर गोइंग टू इवॉल्व इनटू लार्जर मेटावर्सेस। तो एक्सपीरियंसेस यहीं से गेम से ही स्टार्ट होते हैं। इनफैक्ट द वे आई सी इट, यू नो, मोस्ट ऑफ द अर्ली गेम्स आर द अर्ली मेटावर्सेस। सर मैंने ये चीज देखी कि जीव से पहले आपका पहला वेब3 स्टार्टअप था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सफोकल, राइट। देन डीकॉम। So DCOM is a partner layer 1 protocol. So DCOM is Australia-based layer 1 protocol. They are focusing. So it's a layer 1 protocol, and then they have subnets, and they are focused on real world asset tokenization and DeFi, Yeah. institutional DeFi. तो उस पे सारा फोकस है DCOM का, and we are the technology partner for DCOM. Zeev is managing all the infra for DCOM, and I'm also a blockchain consultant with them. So it's like डीकॉम में ऐसा है कि आप अगर मैं एकदम फ्यूचर में जाकर के बोलूँ तो आप रियल एस्टेट जो है उनको आप ब्लॉकचेन में एज कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, रियल एस्टेट हो गया, कार्बन क्रेडिट्स हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ रियल एसेट्स, यू नो, कमोडिटीज हो गई जैसे गोल्ड, सिल्वर, आप डिफरेंट टाइप, मतलब फंजिबल एज वेल एज नॉन फंजिबल टोकन्स, नॉन ट्रांसफरेबल टोकन्स, हर टाइप के टोकनाइजेशन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके डिफरेंट एसेट क्लासेस को आप टोकनाइज कर सकते हो, सेकेंडरी मार्केट में उनकी ट्रेडिंग है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि फिर इससे डीफाई भी मैसिवली ग्रो करेगा, बिकॉज अभी डीफाई में क्रिप्टो कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग है। आप क्रिप्टो देते हो और उसके बदले में आप क्रिप्टो लेते हो, राइट। आपके पास ईथर पड़ा, आपने ईथर उसमें एज अ कोलेटरल रख दिया और उसकी जगह यूएसडीटी ले लिया। अब आप सोचो, आप टोकनाइज एसेट्स जो हैं, रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, मॉर्गेजेस हैं, वो आप डीफाई में यूज कर सकते हो और उसके अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हो ना। तो वो फिर इट विल इंक्रीज द साइज ऑफ द मार्केट, क्योंकि वंस रियल वर्ल्ड एसेट्स कम इनटू, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वर्थ ऑफ एसेट्स। तो काफी बड़ा मार्केट है वो। और सर अगर मैं सिर्फ रियल वर्ल्ड एसेट्स की बात करूँ तो डीकॉम मतलब कौन से रियल वर्ल्ड एसेट्स पे सिर्फ फोकस कर रहा है? नहीं, वो जनरल है, क्योंकि ये जनरल लेयर 1 प्रोटोकॉल है जो कोर कंपोनेंट्स देता है, जैसे आइडेंटिटी है, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स है। प्रूफ ऑफ रिजर्व्स हो गया कि जिसके बेस पे आप एस्टैब्लिश करते हो कि हाँ ये अंडरलाइंग एसेट है, उसके ऊपर आप टोकनाइजेशन की लेयर है ना।
तो प्रूफ ऑफ एसेट्स हो गया, डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी, डिसेंट्रलाइज ऑरेकल्स हो गए। तो ये कई सारे जो कोर कंपोनेंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। आप जाइए वहाँ पे अपनी अपनी जो भी एप्लीकेशन बिल्ड करनी है आप उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हो। तो इन फ्यूचर लोग बीकॉम की सर्विसेज फिजिकल वर्ल्ड जो है चीज़ें उनको टोकनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो अभी मतलब ये कहाँ पे ऑपरेशन इनकी चल रही है? ये majorly? टेस्टनेट इसका ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी अच्छी कम्युनिटी बननी चालू हो गई है। बहुत सारे स्टार्टअप्स जो ऑलरेडी बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है टेस्टनेट के ऊपर ही। मेन नेट आई थिंक विल बी लॉन्च बाय एंड ऑफ दिस मंथ और इन दिसंबर। Okay, तो वहाँ पे सर जो टोकनाइज करना चाहते हैं चीज़ों को मतलब वो दे आर ओपन और या फिर मतलब वहाँ हाँ, पे अडॉप्शन रेट अच्छा है मतलब? जैसे जैसे कंट्रीज में रेगुलेशन, क्योंकि जब रियल वर्ल्ड एसेट्स की हम बात करते हैं तो फिर रेगुलेशंस भी इंपॉर्टेंट है। हाँ तो जैसे जैसे रेगुलेशन आ रहे हैं, जैसे आज के टाइम में यूरोप में अगर आप देखोगे या कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने ग्लोबली इक्विटी टोकनाइजेशन प्रॉपर लीगलाइज कर दिया है, फॉर्मलाइज कर दिया है, उसके स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस आ गए हैं प्रॉपर। तब काफ़ी सारी कंपनीज है जो टोकनाइज कर रही है अपनी इक्विटी को, और फिर उसके बेसिस पे फंड रेजिंग हो, चाहे कोई भी मेजर मेजर फंड रेजिंग, बट देन फॉर अदर पर्पसेज ऑल्सो। फिर फ्रैक्शनल एनएफटीज का कॉन्सेप्ट है रियल एस्टेट में, आर्ट में, बहुत सारे एरियाज के अंदर। तो अब जैसे जैसे लीगल फ्रेमवर्क बिल्ड होता जाएगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनता जाएगा, तो ये टोकनाइजेशन भी आप देखोगे विल बिकम वेरी कॉमन और काफ़ी होने लग जाएंगे। अभी आई थिंक जो चीज़ हैम्पर कर रही है वो रेगुलेशंस हैं। जो रेगुलेशन क्लैरिटी नहीं है तो फिर टोकनाइज करके कैसे करेंगे। और आई थिंक इंडिया में तो थोड़ा लेट हो जाएगा आते आते, इसमें थोड़ा सा तो Correct. टाइम लगता है, खासकर इंडिया की बात करें तो हम। राइट। और स्पेशली अगर फिजिकल वर्ल्ड एसेट्स को टोकनाइज करना हो तो और ही लेट हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। करेक्ट। नहीं नहीं, वो इट विल टेक टाइम। तो आई थिंक इसीलिए द इनिशियल टारगेट आई थिंक वुड बी मोर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स जो ऑलरेडी डिजिटल हैं। So they will be the easier first layer that will be targeted, और वो ऑलरेडी हो ही रही है। कार्बन क्रेडिट्स हैं, काफ़ी स्टार्टअप्स आ गए जो कार्बन क्रेडिट्स को टोकनाइज कर रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट इस्टेब्लिश हो रही हैं। एंड देन फिजिकल एसेट्स जहाँ पर हैं, टेंजिबल फिजिकल एसेट्स, वो उसके बाद जैसे जैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनता जाएगा आई थिंक अडॉप्शन विल स्टार्ट हैपनिंग। एंड सर व्हाट अबाउट सफोकल? इट वाज द फर्स्ट वेब3 स्टार्टअप। तो या तो सफोकल में हम इंटरप्राइज प्रोडक्ट्स से स्टार्ट किया था, जैसे ट्रेड फाइनेंस हो गया, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, या फिर सप्लाई चेन ट्रैक एंड ट्रेस। तो ये सारे इंटरप्राइज प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस उसमें बनाए थे। वी वर्क विद क्वाइट अ फ्यू इंटरप्राइजेस। तो एक्साइटिंग जर्नी थी, लेकिन उसी जर्नी के दौरान हमने इंफ्रा को अपॉर्चुनिटी देखी कि इंफ्रा इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी बिकॉज यहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और हम खुद भी फेस करते थे। तो वी फेस दोज प्रॉब्लम्स फर्स्ट हैंड। तो वी हैड अ गुड नैक कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या हमें करना है इसके लिए बना। तो दैट्स हाउ जी वाज बॉर्न। हमने पहले प्रोडक्ट बनाया था अपने अपने कंजम्पशन के लिए, तो देन वी रियलाइज दैट यस दिस इज समथिंग दैट ऑल द बेसिस। तो देन फिर हमने सफोकल से मूव करके जीव ओके। इनकॉर्पोरेट किया, जीव से स्टार्ट किया। in a layman's language, Zeev is a Web3 का AWS। हाँ, आप कह सकते हो, करेक्ट। सो वी प्रोवाइड कंप्लीट इंटरफेस जिसके थ्रू आपको ब्लॉकचेन के नोड्स डिप्लॉय करने हैं, नेटवर्क डिप्लॉय करना है, या APIs यूज़ करनी है। आप सिंपली आओ, रजिस्टर करो, यू कैन स्टार्ट यूजिंग। मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज डू इट योरसेल्फ, एक्सेप्ट फॉर समटाइम्स एंटरप्राइजेस में रिक्वायर लेगेसी इंटीग्रेशंस। बाकी सारा डू इट योरसेल्फ है। आओ, अपना कनेक्ट करो एंड गेट स्टार्टेड, यू कैन स्टार्ट कंज्यूमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। And we have a very large team, a very solid expert team which manages everything. We are a team of 100 people now, and we manage the full infrastructure at the back. जैसे मैंने बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने जीव का सब कुछ इन्फो दे दिया है, तो जिनको भी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सुन के तो दे कैन टेक देयर सर्विसेज एंड ऑल। एंड सर अगर मैं बोलूँ तो जो कि मार्केट में स्पेशली वेब3 की वजह से हर दिन कुछ ना कुछ नया आता है, और फाउंडर्स के लिए थोड़ा सा वेब 2 में मुझे आसान लगता है चीज़ों के साथ कोप अप करने में, पर मुझे ऐसे पॉडकास्ट भी करना पड़ता है, फाउंडर्स के साथ मिलना पड़ता है। एंड वेब 3 में चीज़ें यूं बदलती है कि मतलब पता नहीं चलता कि अगले दिन सुबह उठते ही कौन सी न्यूज़ मिल जाएगी। तो सर आप कैसे कोप अप करते हो? मतलब नहीं, आई थिंक लॉट ऑफ रीडिंग, क्योंकि नई एक्साइटिंग चीज़ें तो हो ही रही हैं। और एक तो आई रीड अ लॉट। सुबह स्टार्ट ही उसी से करता हूँ, read whatever news are there, some exciting announcements, whatever happened. So CoinDesk, Cointelegraph, some of the Define, some of the regular publications that I subscribe to.
और इसी से अपडेटेड रहते हो धीरे धीरे आप क्या हो रहा है, बिकॉज अदरवाइज चीज़ें जब हो जाती है उसके बाद पता करने में तो मज़ा नहीं है, मज़ा तो शुरू में ही होता है जब हाँ। देखते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो अपडेट रहना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी है तो बहुत क्विकली चेंज होती है, क्विकली अपडेट होती है, नए इनोवेशंस आते हैं। और सर फ्रॉम अ फाउंडर्स पर्सपेक्टिव जैसे कि वो नई 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 टेक्नोलॉजी को लेकर के नई नई अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर आउट करके देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबका कोई ना कोई प्रोसेस होता है। मैंने देखा है कि वो नई चीज़ों को देखते हैं, नई टेक्नोलॉजी को देख के देन दे फाइंड आउट कि अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या हो सकती है फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो मतलब मैं आपका प्रोसेस की बात करूँ तो वो नहीं, मेरा प्रोसेस जैसे मैंने शुरू में बताया बड़ा सिंपल है। वी लुक द अदर वे अराउंड। सो आई सी टेक्नोलॉजी एज ए एनेबलर। टेक्नोलॉजी तो आपको हेल्प कर रही है किसी हाँ। चीज़ को सॉल्व करने के लिए। मेन फोकस प्रोसेस में प्रॉब्लम पे होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई क्लियरली हो गई तो सॉल्व करने के लिए क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे या क्या इनोवेशन हमें करना होगा, वो उसके बाद का पीस है। बट प्रोसेस स्टार्ट्स विद प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, वैलिडेट कर ली कि हाँ ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और या तो उसको कोई सॉल्व नहीं कर रहा है या कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वो इतना इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर रहे हैं, और स्पेस बड़ी है तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा प्लेयर भी एग्जिस्ट करते हैं। चाहे जोग्राफिकल लिमिटेशंस ले लो, इतने सारे प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं तो लिमिटेशंस काफ़ी होती हैं। तो आई थिंक स्टार्ट विद प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम अच्छे से अगर डिफाइंड है कि हाँ इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, फिर किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर क्या इनोवेशन लेके आ सकते हैं, तो सोल्यूशन साइड पे वहाँ टेक्नोलॉजी रोल प्ले करती है। वहाँ टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज या नॉलेज या इनोवेशन इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम अगर सही से डिफाइंड नहीं है, वैलिडेटेड नहीं है, तो फिर टेक्नोलॉजी कुछ खास कर नहीं पाती है। वो एक्साइटमेंट जो है ना वो बहुत फिकल सा होता है, वो सस्टेनेबल नहीं है वो। और मैं तो मैक्सिमम देखा है लोग टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं एंड जाते सिर्फ देन वो प्रॉब्लम पे जाते हैं। हाँ, तो उसमें चांसेस आर मोर दैट यू नो द सक्सेस विल नॉट बी देयर। तो प्रॉब्लम साइड से जाओगे तो एटलीस्ट विल बी अश्योर्ड दैट यू आर सॉल्विंग समथिंग, यू आर बिल्डिंग समथिंग दैट समबडी इज गोइंग टू बाय। एंड ऑफ द डे आप कुछ भी बना रहे हो तो आप चाहते हो यूज़र यूज़ करे उसको। अगर यूज़र यूज़ नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा फिर उसका, उसके बनाने का कोई पॉइंट नहीं वो है। तो सिर्फ एक फेरी टेल हो जाएगा जैसे हाँ, तो यूज़र यूज़ करेगा तो यूज़र पे भी करेगा, यूज़र पे करेगा तो विल हैव अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल ऑल्सो, जिस मॉडल को आप लेके आगे बढ़ सकते हो। एंड देन यू कैन थिंक कि हाँ दिस स्टार्टअप विल ग्रो। हाँ, ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं सभी फाउंडर्स को बोलता हूँ डोंट फोकस ऑन फंडिंग, डोंट फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। यू नो ये सब तो हो ही जाएगा। फंडिंग इज जस्ट अनदर रिसोर्स यू रिक्वायर, राइट? It's not that how you build business, it's not based on funding. तो आप फोकस करो प्रॉब्लम पे और फोकस करो उसके बाद उसके एक अच्छे सोल्यूशन पे जो उस प्रॉब्लम को अच्छे से इफेक्टिवली सॉल्व करता हो। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें अपने आप आने लग जाएगी। थिंग्स विल स्टार्ट फॉलोइंग इन प्लेस। अगर आपने ये दो चीज़ें इंश्योर कर ली ना तो बाकी सारी चीज़ें तो आ Problem जाएंगी। उसके बाद उसके लिए ऐप सोल्यूशन, फिर उसके बाद सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। एक बार आपने वैलिडेट कर दिया तो उसके बाद में फंडिंग वंडिंग किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज इन्वेस्टर्स अल्टीमेटली देयर बिजनेस इज टू गिव फंडिंग। वो भी ऐसे स्टार्टअप देखते हैं यहाँ जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो सस्टेनेबल है, जो आगे ग्रो करेगा एंड यू नो विल ग्रो 5x 50x 500x, तो वो भी इसी में इन्वेस्ट करते हैं। एंड सर वन वे टू वैलिडेट अ प्रॉब्लम इज कि आपने वो प्रॉब्लम खुद ही फेस की हो। एक्सीलेंट है वो। एंड व्हाट आर द अदर वेज आपके अकॉर्डिंग? देखो एक्सपीरियंस से ही आता है, कोई बुक नहीं है जिसको आप पढ़ के जान सको कि ये 5 प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व करनी है, राइट? तो ये आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते हो। इसीलिए आप देखोगे स्टार्टअप्स मोस्टली अपने डोमेन से निकल के आते हैं। कोई अपने एक फिनेंस में कोई कुछ कर रहा था और फिर उसे लगा कि यार एक ही प्रॉब्लम है जो मैं करंटली सॉल्व नहीं कर पा रहा। देन ही अटेंडेड सम ब्लॉकचेन कॉन्फ्रेंस, उसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखी और टक से उसको लगा कि यार ये जो प्रॉब्लम थी ये इस टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर सकता हूँ, राइट? तो वैसे ही आइडियाज़ आते हैं। तो आइडियाज़ का कोई शॉर्टकट तो नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते हो, आप पढ़ते हो, जानते हो, अटेंड करते हो, कॉन्वर्सेशंस में जाते हो, यू लिसन, कुछ ना कुछ आइडियाज़ आते हैं फिर। एंड सर अगर हमने फेस ना किया हो प्रॉब्लम पर कोई और फेस कर रहा है और एक बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है जो फेस कर रही है, तो देन वी कैन अगर या 100%। ऐसा नहीं कि फेस खुद ही करने की ज़रूरत है। कई चीज़ें होती है बहुत कॉमन है, जैसे आज अब जस्ट इमेजिन ग्रोसरी स्टार्टअप्स यू नो हैपेंड ऑलमोस्ट 5-6 years back, right? Big Basket आया, and then I also worked with a grocery startup called Grossa Max.
which was later acquired by Tata. तो लेकिन किसी ने उस समय मिल्क बास्केट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं सोचा था, और ये प्रॉब्लम जेन्युइनली सब फेस करते हैं। फैमिली तो सब देखते हैं कि सुबह उठे तो पता लगा कि यार अभी अंडे ही नहीं है, अब नियर बाय शॉप तो 8 बजे खुलेगी, ठीक है, और किसी को स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को कुछ चाहिए, वो चाहिए, वो आपको उसी समय 5 बजे चाहिए। नाउ Amazon is not helping you out, not Big Basket is not helping you out. वेरी सिंपल प्रॉब्लम जो हम डेली देखते हैं, तो प्रॉब्लम देखने की बात है बस, यू नो, यू नीड टू सी दैट प्रॉब्लम। कोई भी फेस कर रहा हो, डजंट मैटर। एंड वेरी एक्साइटिंग आइडिया। आई थिंक इससे एक ही मतलब समरी निकल के आ रही है कि क्यूरियस रहो प्रॉब्लम्स को नोटिस करने के लिए, जैसे वो स्टीव जॉब्स का था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मतलब बेसिक चीज़ों पर वो अलग बात है कि बेसिक चीज़ें समझ नहीं आती लोगों को कभी कभी। तो प्रॉब्लम तो देखो जरूरी है, अदरवाइज तो फिर क्या होता है, वो इट बिकम्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। यू बिल्ड समथिंग, देन यू ट्राई टू सेल इट एंड देन नोबडी इज बाइंग इट, इट बिकम्स अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज। और सर जैसे कि एक लास्ट दो टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि पहला कि पहले कि आप कौन कौन सी वेबसाइट्स हो गई या फिर न्यूज़लेटर्स हो गए अपने आप को अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो सुन रहा है व्यूअर वो जान पाए। हाँ देखो, एक तो if you're new to blockchain, if you want to understand what blockchain is, I would always recommend to start with Bitcoin white paper. Read the Bitcoin white paper and you'll get to know what blockchain is all about, because वो white paper केवल technology paper नहीं है, it's a paper which talks about the whole philosophy behind blockchain, whole economics behind blockchain, because it has got a very sound economic model, which is very important to understand blockchain, how incentives work, and how you can create properly, you can ensure that stakeholders are aligned with the overall objective of something. तो वो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स अलाइनमेंट जो है ना, वो बहुत बहुत अच्छे से किया हुआ टेक्नोलॉजी के साथ। सो दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। एंड देन ऑफ कोर्स रीड इथेरियम वाइट पेपर टू नो मोर अबाउट हाउ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाट फ्लेवर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एडेड टू द होल बिटकॉइन पीस, राइट। तो इससे आपको वो टेक्नोलॉजी का समझ में आएगा। कंटिन्यूस अपडेट्स में जैसे मैं बताया, CoinDesk, Cointelegraph, Define, and there are quite a few crypto publications which continuously publish all the news, and they also cover some of the startups, what is happening. और इसके अलावा फिर आप जैसे गूगल न्यूज़, गूगल अलर्ट्स इज़ अ वेरी सिंपल वे। तो गूगल अलर्ट पे आप अपने 2-3 कीवर्ड्स, ब्लॉकचेन, डीफाई, NFT, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, वो कीवर्ड्स आप डाल सकते हो, तो फिर आपके पास डेली डाइजेस्ट आने लग जाती है। फिर पिक्स अप न्यूज़ फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड and then compile them and send it across to you. बाकी अब काफ़ी फिनटेक पब्लिकेशंस है जो कवर करने लग गए हैं, जैसे आज याहू फाइनेंस है, ब्लूमबर्ग है, ये सब दे आर कवरिंग क्वाइट अ फ्यू आर्टिकल्स एटसेट्रा। तो ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, कई सारे लिंक्डइन पे ग्रुप्स हैं कुछ ब्लॉकचेन के which gets you can get access to some good articles एटसेट्रा what is happening. And sir, second thing is कि जैसे कि what are the common mistakes that early stage founder makes, क्योंकि आपने multiple companies start करी scratch से, then you are successfully running Zeev now, so what are the common mistakes they make, and secondly what were the books that really helped you? बुक्स तो आई थिंक एक तो ऑपरेशन साइड पे मुझे लगता है कि बुक्स डेफिनेटली हेल्प करती है, यू गेट टू लर्न अ लॉट। सो आई रेगुलरली रीड HBR. So HBR में they cover lot of very good things about operations like HR or technology strategy. HBR Harvard Business Review. तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें आइडिया लगती है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, टैलेंट मैनेजमेंट, और इफ़ यू टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, कैसे अलाइन करना है स्ट्रैटेजी को, बीइंग एजाइल, तो ये डेफिनेटली हेल्प करता है। On the mistake side, see, I think as I mentioned, start with a problem, ensure your product is और पहले दिन ताजमहल बनाने की मत सोचो, वो नहीं चलता है स्टार्टअप्स में, until unless you have tons of money to spend from day one. But if you are starting small or bootstrapped हो, तो start with the problem, solve it, take it the solution to the customer as early as possible. आप MVP बना के चले जाओ कस्टमर के पास, और उससे क्या होगा कि आपका जितनी जल्दी वैलिडेशन होगा प्रोडक्ट का, उतनी जल्दी आप इंश्योर होगे कि हाँ, दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट एंड दिस विल गोइंग टू वर्क। और वो आपने एक बार कर लिया, वैलिडेशन कर लिया, देन यू कैन ऑफ कोर्स बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक कॉल्ड रीवर्क।
So Rework is authored by the founder of 37 Signals, which launched Basecamp. तो Basecamp एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, छोटा नॉट इन द साइज बट छोटा इन द सेंस कि उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में ना सारे वो कॉम्प्लेक्स फीचर्स हटा के बहुत सिंपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल लॉन्च किया. एंड देयर आइडिया इज दैट लेट पीपल start using it. Now Basecamp is one of the biggest project management platform. So the founder of that, he wrote this book called Rework. तो Rework में भी उसने यही कहा कि आप जितनी जल्दी जाओगे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके, it's yesterday also I met very interesting, I met the co-founder of Lambda Test. उसका भी कहना था कि if you are bound to fail, then fail fast. Correct. Yeah. Right. Sure. तो जितनी जल्दी फेल भी होगे तो एटलीस्ट you'll get to know what is not working. नहीं तो आप एक चीज को लेके लगे रहोगे जो बनाए जा रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं है उसका. तो टेक योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, क्रिएट एन MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, उसको कस्टमर के पास लेके जाओ, वैलिडेशन करो, एंड देन यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम टू कीप बिल्डिंग ऑन इट. उसके बाद और फीचर्स और वो सब तो जो बेल्स एंड विसल्स हैं, फ्रिल्स है, वो तो ऐड हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट देन एटलीस्ट यू विल बी श्योर दैट यस आई हैव वैलिडेशन दैट देयर इज अ प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग, दिस इज द राइट सोल्यूशन दैट आई एम गिविंग and it's working out. There are customers who are willing to pay for it. वो सबसे important यही है ना. और काफ़ी लोग मैंने देखा है कि नहीं पहले बिल्ड कर लेते हैं अच्छे से, पूरा अच्छे से कर लेंगे. मैंने सोचा, फिर मैं थोड़ा कंफ्यूजन में आ गया कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ कि पहले बिल्ड कर लेते हैं उसके बाद मार्केट करना शुरू करेंगे, कस्टमर के पास लेके जाएंगे. तो स्टार्टिंग से मेरे मन में था कि मतलब ले जाना चाहिए था ऑब्वियसली, पर इतने उसने मतलब एक बंदे ने मेरे को इतने एग्जांपल्स दे दी कि उस स्टार्टअप में भी फाउंडर्स ने ऐसा किया था कि सब कुछ बना लिया, उसके बाद लेके गए, बाद में 6 महीने तक काम करते रहे. तो आई वाज लाइक कि कहीं वो सही तो नहीं कह रहा है. नहीं देखो, whatever I'm telling you is based on my experience and whatever experiences I've read from other startups. आइडिया सिंपल सा ही है कि प्रोडक्ट तो आपको इवेंचुअली बनाना ही है. वो सारे फीचर्स ऐड करोगे. अगर आप एक सपोज कंपैरेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, लेट्स से टुडे यू आर लॉन्चिंग अ CRM. नाउ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ CRM व्हिच आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट. तो ऑफ कोर्स अगर आप एक CRM बना रहे हो, या तो आप उसके अंदर बना रहे हो कि मैं एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए बना रहा हूँ, या स्पेसिफिक यूज केस के लिए या डोमेन के लिए बना रहा हूँ, तब तो आप ये MVP वाला अप्रोच ले सकते हो. अगर आप एक जनरल पर्पस CRM लॉन्च कर रहे हो तो आप आज के आपके टाइम में पास Zoho है, HubSpot है, Salesforce है, तो आपको compete करने के लिए फिर एक प्रोडक्ट बनाना होगा ना जो उसके साथ compete करे. तो उसमें आपको वो फीचर्स भी day one से चाहिए होंगे जो उसके अंदर है. Then it becomes a different scenario. बट अगर आप एक नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एग्जिस्टिंग वो नहीं है कि हाँ ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, या फिर आपने अपनी उसमें निच जो हम कहते हैं आइडेंटिफाई द निच विद इन दी, हाँ, तो आप अपनी निच आइडेंटिफाई अगर कर लोगे एक बार कि हाँ इस जगह पे मैं ऑपरेट करूँगा, मैं केवल इतना ही पीस करूँगा, है ना, और उस पीस के अंदर कंपैरेटिव प्रेशर नहीं है, तो वहाँ पर आप यही करोगे. आप उसको आइडेंटिफाई करके क्रिएट एन MVP, गो टू द कस्टमर फास्टर, लेट द कस्टमर हेल्प यू बिल्ड द प्रोडक्ट. दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से. मैं अपनी कंपनी में भी यही कहता हूँ कि लेट द कस्टमर बिल्ड द प्रोडक्ट. रोड मैप तो कस्टमर ही बनाता है, हम थोड़ी बनाते हैं रोड मैप. कस्टमर बताता है मुझे ये चाहिए, इसमें ये भी चाहिए, इसमें ये भी चाहिए, वो हमें जैसे प्रॉब्लम्स बताता है वो हमारी प्रायोरिटी बन जाती है. हो सकता है हमारे रोड मैप पे हो 6 महीने बाद में कोई फीचर हमें करना है, लेकिन आज कस्टमर्स 2-3 कस्टमर्स की डिमांड आई कि नहीं ये फीचर हमें चाहिए, तो हम उसको 6 महीने बाद से उठा के अभी ले आते हैं उसको रोड मैप में, बिकॉज अल्टीमेटली जो कस्टमर्स को चाहिए वो प्रायोरिटी है ना हमारे लिए. लेकिन बाकी तो ये है कि अपने हाथ एक बार डालने ही पड़ते हैं, और टिल यू गेट योर ओन हैंड्स डर्टी तब तक वो समझ में आता नहीं है. और फिर न्यूएंसेस भी होते हैं. सिर्फ बाहर से हम किसी भी प्रॉब्लम, स्टार्टअप, इनोवेशन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वो मैं आपको बता दूँ वो बहुत ही हाई लेवल पिक्चर होती है. जब आप एक्चुअली किसी प्रोसेस में घुसते हो तब आपके नुएंसेस आपको पता लगते हैं, फिर आपको पता लगता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम के भी अलग रेमिफिकेशंस होते हैं. एक प्रॉब्लम जो हमें दिखती है सामने वो हो सकता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही ना हो, प्रॉब्लम ही कोई और बोले उससे रिलेटेड. तो इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे स्टार्टअप्स ना डिटोर करते हैं, दे स्टार्ट विद समथिंग और फिर पता लगता है कि अरे यहाँ तो प्रॉब्लम ही कुछ और है, तो वो मूव कर जाते हैं. बट जो वो मूवमेंट ऐसा नहीं है कि वो एकदम ड्रास्टिकली डिफरेंट होता है. वो स्टार्ट जिस चीज़ से किया होता है उसी से रिलेटेड ही होता है. लेकिन अगर आप उसको बाद में देखोगे 2 साल 3 साल बाद पता लगेगा कि यार ये तो कुछ और कह रहे थे कि बना रहे हैं, लेकिन ये बना कुछ और ही रहे हैं, है ना. तो कई इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार घुस जाओ अंदर, घुस जाओगे तो फिर देन यू विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग न्यूएंसेस आल्सो. वो आपको बाहर से पढ़ने से कभी नहीं मिलेंगे, किसी से सुनने से कभी नहीं आएंगे. वो तो खुद ही अंदर जाते हैं ना, तब पता लगता है कि रियल प्रॉब्लम क्या है और क्या हम कर सकते हैं, व्हाट बेटर वी कैन डू.
और वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग आपको आइडियाज भी मिल जाते हैं, जो आइडिया पता लगता है आपके कंपेटिटर्स या एग्जिस्टिंग प्लेयर्स सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, जो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप अगेन मिल्क बास्केट, मतलब टाइम पे तो खेला ना उन्होंने, हाँ। डिलीवरी ना। और मैंने ये भी चीज़ देखी है कि अगर कोई कॉम्पिटिटर है आपका, मतलब मैंने पता नहीं, आई थिंक कि इनोवेट का जो को फाउंडर है वो बता रहे थे कि जब अडॉप्शन नहीं हुई थी कोवर्किंग स्पेस की, जब वीवर्क आया था, और हमने उस टाइम जब वीवर्क आया था और हमने उस टाइम कुछ भी शुरुआत नहीं की थी और वीवर्क ने हमारा आधा काम कर दिया इंट्रोड्यूस करके। राइट। तो आई थिंक ये भी एक अच्छी बात है कि अगर कोई बड़ा प्लेयर आ रहा है कोई 0 to 1 गेम में और वो वैलिडेट करके दे रहा है, तो आपका टाइम और रिसोर्सेज बच सकते हैं। एब्सोल्युटली, वो तो है। देखो, you should learn from other founders, no doubt, because they have taken the step. But what I'm trying to say is कि वो तो आपको करना ही करना है, but that will not give you a complete picture. उसके बाद जब आप खुद घुसोगे, then you'll get some more interesting ideas that may come out of it. और बाकी shared economy तो खैर no doubt, the whole concept of shared economy with Uber coming in, with Airbnb coming in, WeWork coming in, so ये तो जितना, ये तो खैर बहुत exciting है। अगेन ये भी देखो, नॉर्मल प्रॉब्लम है, सबको पहले से पता थी कि एक तरफ स्पेस नहीं है, एक तरफ एम्प्टी स्पेस पड़ी है, आइडल स्पेस पड़ी है, आइडल कैपेसिटी। आज हम ऑपरेशंस में भी यही कहते हैं ना कि जितनी आइडल कैपेसिटी को रिड्यूस करो उतना अच्छा है, इसको यूटिलाइज करो, जितना यूटिलाइजेशन बढ़ाओ। वो फैक्ट्री के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, बट हम अपने चारों तरफ आइडल कैपेसिटीज देखते हैं। तो ये सारे स्टार्टअप उसी कॉन्सेप्ट पे थे कि कैसे यूज किया जाए उस कैपेसिटी को। आई थिंक मैंने इतनी बुक तो नहीं पढ़ी जितनी आपने पढ़ी होगी रिलेटेड स्टार्टअप्स, बट मैंने पढ़ के ये एक चीज़ जानी है कि मतलब आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, पर चीज़ें मैक्सिमम आपको चीज़ें एक्ट करके ही समझ आएंगी। एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। तो हम पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं, और कुछ आपको कुछ कहना हो यंगस्टर्स को, जो अभी कुछ फाउंडर्स होंगे जो देख रहे हैं। काफ़ी Web3 फाउंडर्स में भी बहुत सारे मैंने यंग लोगों को देखा जो कि दे आर बिल्डिंग रियली कूल स्टफ, एंड उनको भी मैं लेके आने वाला हूँ वैसे। तो उनके लिए आपको कोई मैसेज देना हो तो? मैसेज यही कि Web3 वी आर इन एक्साइटिंग टाइम्स, इट्स अनदर एरा ऑफ इंटरनेट व्हिच इज स्टार्टिंग, Web3। और आप कुछ भी बिल्ड कर रहे हो तो जस्ट कीप ऑन बिल्डिंग, इट्स वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। And there are a lot of startups from India, and this is something great, because now we are creating innovations. We are not just known for services anymore. We are creating some exciting startups which are competing at the global level. So I think keep building, keep innovating. तो मैं जीव एंड सर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड और हम रैप अप करते हैं ये पॉडकास्ट को। होपफुली हम बाद में भी रवि सर को पॉडकास्ट पे लेके आएंगे, जो भी चीज़ें आपको समझनी होगी सर से, अगर आपको लगता है कि और चीज़ें जाननी है। एंड अगर मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा क्विल ऑडिट्स एंड देसी क्रिप्टो को। एंड क्विल ऑडिट्स एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग फर्म है जो कि ग्लोबली बहुत अच्छा कर रही है, एंड उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड टॉकिंग अबाउट देसी क्रिप्टो is one of the best marketing companies in Web3, and they are doing very well, and globally वो भी अपनी marketing services देते हैं, उनके भी information आपको description में मिल जाएंगी। And thank you Ravi sir, thanks for coming on my podcast, and thank you guys, next podcast में मिलते हैं। Thank you.